Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter from Unit 6 in Indian Economic Development. Indian economy on the eve of independence. Just when we got independent, उससे पहले what was the condition of Indian economy, the state or the condition of Indian economy, we are going to discuss it sector wise. Okay, so the first sector we are going to discuss is agriculture sector. In agriculture, what was the condition of India just before independence? 72% population was engaged in agriculture. So almost 3/4 of population was occupied in agriculture. But the sad part was that the contribution of agriculture to GDP or national income was only 59%, not even 60%. So even though 72% population was engaged in agriculture, the contribution to GDP was not as much. Second thing is low production and productivity. Production you already know, output को production कहते हैं, जितना भी पैदावार होती है production उसको कहते हैं. What is productivity? Productivity means production capacity. It is measured as per hectare of land. यानी per hectare में जितना production होता है उसको productivity कहते हैं. ये हमारी productivity भी low थी और production भी low था. As compared to other countries, both production and productivity of India at that time in agriculture was less. Subsistence nature of farming. First let us discuss this word subsistence. Now subsistence means guzara. Like when you do farming, you can do it either as a commercial farming or as a subsistence farming. Subsistence farming में let me just use this word so that for future reference whenever you read you remember कि गुजारे के लिए जब फार्मिंग की जाती है तो गुजारा कैसा, जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली अगर फार्मिंग की जाती है तो उसको सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग कहते हैं एज अगेंस्ट कमर्शियल फार्मिंग. नेक्स्ट वी कम टू हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन. खेती के लिए इरिगेशन की जब पानी की ज़रूरत पड़ती है फसलों को तो इंडिया उस वक्त में हैवीली डिपेंडेंट थी रेनफॉल में. बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई, अदरवाइज फसल खराब हो गई बिकॉज अपने कोई सोर्सेज ऑफ इरिगेशन लोगों ने डेवलप नहीं किए थे सच एज ट्यूबवेल्स. लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉयटेड टेनेंट फार्मर्स. ज़मीन ज़मींदारों की थी बट उस पर फार्मिंग कौन करता था? टेनेंट फार्मर्स. लाइक फार्मर्स को वो अपनी ज़मीन दे देते थे और वो उस पर खेती करते थे फार्मर्स. बदले में उनको जो भी प्रोड्यूस होता था उसका एक हिस्सा मिल जाया करता था. बट एज यू नो लैंडलॉर्ड्स बीइंग ज़मींदार्स they used to exploit tenant farmers because लिखा पढ़ी कुछ होती नहीं थी, जितना उनको दे दिया करते थे उतना farmers उनसे accept कर लेते थे. So in this event the tenant farmers were exploited. Next we come to forced commercialization by Britishers. Let's come to forced part later. First let's see what is commercialization. Commercialization का मतलब है shift from food crops to cash crops. हमने देखा कि हमारी farming subsistence nature की थी. फैमिली के गुजारे के लिए जब फार्मर ग्रो करता था तो पहले बीट राइस ऐसी चीज़ें ग्रो करता था जिससे उसके घर की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो. लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्स किया हमारे फार्मर्स को कि वो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन और इंडिगो ग्रो करें. स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स. हमारे खेतों का जो साइज़ था उस वक्त में स्मॉल साइज की फार्म्स थे, होल्डिंग्स मतलब फार्म्स, and they were scattered. Small size इसलिए था because of law of inheritance from father to son. जब property divide होती है तो करते करते finally जिसके जब पहुँचती है किसी एक के पास में तो एक खेत का size बहुत छोटा होता है. And not only this, if that same son later on who gets a small size of farm उसने कोई दूसरा खेत खरीदा तो पास वाला खेत उसको नहीं मिलता. दूर दराज में अगर वो कोई दूसरा खेत खरीदता है उस पर वो लेटेस्ट तरीके से फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड ऑल नहीं कर सकता. सो स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स या फार्म्स वाज अनदर सिचुएशन दैट अकर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर. जब पार्टीशन किया गया तो लेट अस इमेजिन अगर हम इंडिया को, आई एम रफली ड्राइंग इट, माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड ओके, बट अगर हम रफली अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता था हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओके, ऐसे करके. तो ये वाला हिस्सा कट के वेस्ट पाकिस्तान बन गया और ये वाला हिस्सा कट के बांग्लादेश बन गया जो कि उस वक्त में ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था. सो वेस्ट पाकिस्तान वॉज दिस पार्ट
एक साइड जो वेस्ट में मिली पाकिस्तान को, उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा गया, आज की डेट में वो पाकिस्तान है। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बनी। इधर की तरफ ये जो हिस्सा है वेस्ट पाकिस्तान का, यहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता था इन गुड क्वांटिटीज। तो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, हमारा बहुत बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो एग्रीकल्चर के लिए इट वाज अ वेरी बिग लॉस, हमारी फर्टाइल लैंड्स पाकिस्तान में चली गई। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, जो कि बांग्लादेश बना लेटर ऑन, बट हमारी जो जूट इंडस्ट्री थी जो यहाँ पर लोकेटेड थी, उनके लिए रॉ मटेरियल जो जूट था वो अगेन हमसे कट के दूसरी कंट्री में चला गया। तो हमारे पास रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। पार्टीशन से ये दो नुकसान हुए, एक तरफ फूड की शॉर्टेज और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। नेक्स्ट वी कम टू हाई लैंड रेवेन्यू। आपने सुना होगा लैंड रेवेन्यू में हम लोग कॉमनली लगान कहते हैं। तो लगान वसूलते थे ज़मींदार्स ऑन बिहाफ लाइक ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने उनको जिम्मा दे रखा था दैट वट एवर लैंड दे वर ओनिंग, उसमें जितनी भी ज़मीन है, जितने भी खेत हैं, फार्मर्स से वो लगान वसूली करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। अब ब्रिटिशर्स के लिए माना 20% लगान वसूल कर रहे हैं, उसमें वो अपना भी 10-15% ऐड कर देते थे। तो फार्मर के लिए इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि उसको जो लगान देना पड़ता था वो ऊंचा देना पड़ता था बिकॉज ऑफ द हाई रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, अगेन द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड. Next we are going to take up the state of industries. Now we are going to take up the state of industrial sector. Number one, twofold policy of deindustrialization. Now what is deindustrialization? Deindustrialization means destroying industries. The reference to this point is when Britishers came to India, Indian handicrafts industries and the handicrafts of India were world famous, such as the muslin cloth of Dhaka, which later became a part of Bangladesh. Dhaka became a part of Bangladesh. It was very famous for its very fine quality. We had gems, we had jewelry, which were very much in demand all over the world. So Britishers, because they came as traders, so they could not really compromise with the fact that when their industrial development will take place, simultaneously if there is demand for handicrafts all over the world, so nobody is really going to buy the machine made goods in comparison to such fine handicraftsmanship. So पहला काम उन्होंने किया कि हम पहले हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे सिस्टमैटिकली, तभी जाके लोग हमारा इंडस्ट्रियल जो मशीन मेड गुड्स हैं उनको खरीद पाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स. दैट मीन्स हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती थी, कॉटन, जूट वगैरह, रॉ मटेरियल्स दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू देयर ओन कंट्री ब्रिटेन, और वहाँ पर जाके इन रॉ मटेरियल्स की मदद से दे यूज्ड टू मेक फिनिश गुड्स. फॉर एग्जांपल कॉटन की मदद से कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे एंड दे यूज्ड टू सेंड देम बैक टू इंडिया, और वो हमारे इम्पोर्ट्स बन गए. वी यूज्ड टू कंज्यूम, वी यूज्ड टू बाय दोज फिनिश्ड गुड्स दैट दे यूज्ड टू सेंड टू आवर कंट्री. तो दोनों तरीके से इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया. एक तरफ हमारे एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स खरीद के और दूसरी तरफ हमारे मार्केट्स को कैप्चर करके. ओके, सेकेंड थिंग इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री. यहाँ पर इस रेफरेंस के बाद में ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली किस तरीके से डिक्लाइन हुआ? बाय मेकिंग रॉ मटेरियल्स अनअवेलेबल एंड एक्सपेंसिव, विच मीन्स कि हमारे लिए रॉ मटेरियल, हमारे हैंडीक्राफ्ट्समैन के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, और क्योंकि कम क्वांटिटी में अवेलेबल थे तो वो बहुत महंगे पड़ते थे, यानी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगी. नंबर टू, लॉस ऑफ प्रोटेक्शन बाय किंग्स एंड प्रिंसेस. ये लॉस ऑफ प्रोटेक्शन किसके लिए पर्टिकुलरली हम मेंशन कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट्समैन के लिए. पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके पर्टिकुलर एरिया में, उनके राज्य में कोई भी एक चीज़ जो फेमस थी एज अ ट्रेड आइटम, तो वो उस कारीगर का, उस हैंडीक्राफ्ट्समैन का ध्यान रखते थे, पूरा उसको पूरी प्रोटेक्शन देते थे, फाइनेंशियली भी उसको हर तरीके से सपोर्ट करते थे. और जब राजा महाराजा नहीं रहे तो अब इस तरीके की प्रोटेक्शन भी हैंडीक्राफ्ट्समैन को मिलनी बंद हो गई एंड रॉ मटेरियल्स बिकेम एक्सपेंसिव. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग दैट दे डिड वाज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव से भरी हुई. व्हेन समथिंग इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मीन्स जब कभी हम भेदभाव दिखाते हैं किसी भी तरीके का. यहाँ पर किस तरीके का भेदभाव था? लेट अस सी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर देखिए दो चीज़ें हुई. भेदभाव किस में? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर हेवीली टैक्स्ड. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को
जब भी अगर कहीं भेजा जाता था तो उन पर टैक्स लगाया जाता था और जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हो गया। और ब्रिटिश गुड्स जो थे वो कहीं भी बिकते थे, दे वर टैक्स फ्री, राइट। तो उनकी कीमत कम होती थी, दे वर चीपर। एक तरफ महंगे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एक और दूसरी तरफ सस्ते फिनिश गुड्स हैं ब्रिटिशर्स के। सो इन कंपैरिजन जो कंज्यूमर है वो चीप चीज़ जो कि उसको कम पैसे में अवेलेबल है उसको ज़्यादा डिमांड करेगा। और यही रीज़न रहा धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली देयर वाज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ब्रिटिश मर्चेंट्स एक्टेड एज मैनेजिंग एजेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज। बहुत बार ऐसा हुआ व्हेन इंडियन मर्चेंट्स वर देयर, सो ब्रिटिश मर्चेंट्स यूज्ड टू टेल देम दैट दे आर गोइंग टू असिस्ट देम इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। और उस अपनी नॉलेज के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए अकेले दे यूज टू चार्ज एज मच एज 50% ऑफ द प्रॉफिट्स। सो इस तरह से भी वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे अपने लोगों से भी वो प्रॉफिट्स चार्ज कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अब ये एक पहला पॉजिटिव पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। कौन सी थी वो इंडस्ट्रीज? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में, जूट इंडस्ट्री बंगाल के पास, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विच इज़ जस्ट सम टाइम बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, ये उन्होंने सेटअप की। और उनकी मदद से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में सेटअप हुई। ये पहली ऐसी कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि अपने आप में इट वाज वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। बाकी हम देखें अगर आगे, देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट टिस्को। उसके अलावा ब्रिटिशर्स वर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बिकॉज वो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाना चाहते थे। आयरन एंड स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज अगर उनको सेटअप करते तो हमारी कंट्री में एक बेस तैयार होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। दे डिड नॉट डू दैट, दे ओनली कंस्ट्रक्टेड और दे ओनली सेट अप सर्टन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। दैट्स व्हाट दे डिड। ओके, नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू टेक द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड. What is foreign trade? Import and export of goods and services. Now at that time what was the condition of foreign trade in India? सबसे पहले let us discuss the composition of trade. We became the exporter of raw materials and importer of finished goods. I have already told you in detail about this. Let us straight away come to the direction of trade. British monopoly was there over Indian trade. That is 50% of our trade was dominated by the Britishers. They used to decide what exactly is going to form a part of the trade, the composition of trade, and with which countries we are going to trade. They were normally either Britain or Britain-friendly countries. Particularly, we mention here China and Ceylon, now known as Sri Lanka, Persia, now known as Iran. इस कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में एक मेजर इवेंट जो अकर हुआ दैट हैपेंड इन 1869, ओपनिंग अप ऑफ स्वेज कैनाल। इंडिया से लेके ब्रिटेन तक व्हेन शिप्स यूज्ड टू ट्रैवल, तो टिल द टाइम स्वेज कैनाल वाज ओपन, इट वाज अ वेरी लॉन्ग रूट। और स्वेज कैनाल के ओपन अप होने के बाद में दिस रूट बिकेम वेरी शॉर्ट, जिसकी वजह से देयर वाज अ लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट and automatically the result was increase in trade between India and England. Opening up of Suez Canal, I am sharing two pics with you, image 1 and 2. Third point is balance of trade. The difference between export and import of goods. Export we have represented by X and import by M. So at that time the balance of trade was favorable for India, which means that exports were greater than imports. So we were having surplus or favorable balance of trade. Now when we were earning more, so our exports earnings or export surplus was there, it could be used for India's development. But because we were ruled by the Britishers at that point of time, तो ब्रिटिशर्स ने उस सरप्लस को यूटिलाइज किया अपने वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। हमारे फेवर में वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसको इस्तेमाल नहीं किया।